دوسری آیت، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ دی۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ آئے اپنے سر جھکائے، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے پاس آج یسایہ نبی کی جو نبوت میں سے کلام ہے، اور نبوت یہ کہتی ہے کہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ یہ نبوت اس والا کلام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ اس وقت میں نہ کوئی لاؤڈ سپیکر، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم، تو بھی بیابان میں پکارنے والے کی آواز اس طرح سے گونج رہی ہے، اس طرح سے جاری اور ساری ہے کہ آواز کا سلسلہ۔ اس بچے سے برائے مہربانی یہ بہنوں نے یہ سب کو تاک کرے گا، اسے باہر پھینک دیں، برائے مہربانی یہ لینے سے لے لیں، یہ باہر پھینک دیں ورنہ یہ تنگ کرے گا۔ اور اس کی آواز پھر بھی جگہ جگہ، علاقہ علاقہ گونجتی ہے اور پہنچتی ہے، اور بہت سے لوگ جمع ہو کر ارد گرد سے وہاں آ پہنچے اور انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ ہاللیلویہ۔ اب نبوت ہے کیا؟ نبوت یہ ہے کہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ کو تیار کرے گا، اور اس نے راہ تیار کی۔ راہ تیار کس لیے کی؟ آٹھویں آیت، راہ تیار کیا ہوئی؟ میں نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ راہ تیار ہو گئی، رستہ تیار ہو گیا، اور روح القدس جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے 7ویں آیت میں جو مجھ سے زور آور ہے، میں تو تم کو پانی سے، لیکن وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا کی راہ کو آج تیار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کی راہ کو اپنی زندگیوں کے لیے تیار کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ہم اس بپتسمے کا مطلب سمجھیں اور جانیں۔ اور یہ بپتسمہ ایک نہیں ہے، دو بپتسمے ہیں، ایک پانی کا اور دوسرا روح کا۔ ایک پانی کا اور دوسرا روح کا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بھلے ہی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بچپن میں بپتسمہ لیا ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ آپ پر ہے، لیکن بھلے ہی آپ نے بچپن میں بپتسمہ
बपतिस्मा लिया हो, लेकिन उस बपतिस्मे की तकमील उसे आप पूरा इस वक्त में करेंगे जब आप यीशु मसीह की तरह से उससे बालिग होकर फुलफिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बचपन के बपतिस्मे के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी डिनोमिनेशन हो, इसको बड़ा कान खोल के जरा समझिएगा, गलत फहमी अपने ज़हन में लेकर नहीं जाइएगा। डिनोमिनेशन कोई भी हो, वो बच्चे को लेकर सब कुछ कोई बनकर देता है, कोई मखसूस कहता है, और कोई कुछ कहता है, कुछ भी कहता हो। हर डिनोमिनेशन का मकसद यही है कि बच्चे को मसीही किया जाए और उस पर आसमान की बादशाही की मोहर किया जाए। हालेलुया। मकसद एक ही है, लेकिन इस बपतिस्मे को अगर यीशु मसीह ने शरीयत के मातहत रहकर बचपन में उस अहद को पूरा किया, तो जरूरी ये था कि यीशु मसीह इसे बालिग होकर भी पूरा करना। हालेलुया। वो निशान था, उसे पूरा कैसे करना है? ज़ाहिरी समझ, ज़ाहिरी समझ उस वक्त है जब मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु की राह तैयार कर रहे हैं। यूहन्ना कर क्या रहा था? यूहन्ना लोगों को तौबा का बपतिस्मा दे रहा है ताकि यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आ जाए, यीशु मसीह वो काम करे। आज पहला पहलू जो पानी का बपतिस्मा है, जिसे आज हम देने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को, ये बपतिस्मा है क्या? वर्ड बैप्टिज्म जो है, हम हर लफ्ज को खोलते हैं कि हर लफ्ज का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे बाइबल है, बाइबल का वर्ड कहां से आया? हम इसी खोल कर देखते हैं, बिब्लियोस। फिर हम बैप्टिज्म को खोलते हैं, बैप्टिज्म कहां से आया? बैप्टिज्म यूनानी जुबान का लफ्ज है, और ये पैदा कहां से हुआ? यूनानी जुबान में अब जब किसी चीज को पानी के अंदर पूरी तरह से डुबोया जाता है, उसे यूनानी जुबान में बैप्टिज्म कहते हैं। और यीशु मसीह जो है, इसका इरशाद आज़म है, पादरी का इरशाद आज़म नहीं है, ये बाइबल मुक़द्दस का इरशाद आज़म है। गौर से सुनिएगा, ये पादरी का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और खुदावंद यीशु ने कहा कि बस जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। बच्चा शागिर्द नहीं बन सकता, मैं इस बच्चे को शागिर्द नहीं बना सकता, मैं इसे सरदरी नहीं करा सकता। जब ये बालिग होगा फिर सरदरी करेगा। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ और इन्हें बाप, बेटे, रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। अब बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मे का मतलब है कि अपने आप को यीशु के साथ जब पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पुरानी इंसानियत और गुनाह के एतबार से मर गए। हम गुनाह और पुरानी इंसानियत के एतबार से क्या हो गए? मर गए। और जब हम पानी से बाहर आते हैं, तो इसका मतलब है कि हम रास्तबाजी के सबब से, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, नई इंसानियत में नए इंसान बनकर जी उठते हैं, जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। अब इसमें का मतलब क्या है? आप हदूद में देख लें, लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। क्या कर लिया उन्होंने? पुराना लिबास, पुरानी जिंदगी जाती रही, पुरानी इंसानियत जाती रही, और उन्होंने यीशु को पहन लिया। यही तो यहाँ पर नबूवत हो रही है। यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद अब ये जो बपतिस्मा हम लेने जा रहे हैं, जिया जो हम लेते हैं,
इस बपतिस्मे का मतलब है डूब जाना, डबो देना, खत्म हो जाना और नई इंसानियत में जी उठना। अब ये जरूरी क्यों है? ये वो रास्ता है जिसके बाद हम दूसरे बपतिस्मे को हासिल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने पुरानी इंसानियत को फेंक दिया। याद रखें, गुनाह और दागदार और पुरानी इंसानियत में कभी भी खुदा का रूह आकर नहीं ठहरता। किसके अंदर खुदा का रूह ठहरता है? वो जो पाक है, वो जो साफ है, वो जिन्होंने गुनाह और पुरानी इंसानियत को उतार कर यीशु को पहन लिया। यीशु ने रूह से मामूल करता है। बपतिस्मे का मतलब है यीशु को पहन लिया। अब यीशु को पहन लिया तो इसका मतलब है कि हमने रूह कुदस को पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बपतिस्मा रूह कुदस का बपतिस्मा। अब रूह कुदस का बपतिस्मा है क्या? बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये उनका गुमान या ख्याल है कि जब कोई गैर जुबानों में दुआ करता है तो उसका मतलब है कि वो रूह से मामूर है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। जब बपतिस्मे के वसीला से यीशु को पहन लिया तो इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि रूह कुदस कोई आसमान से आएगा और आसमान से आकर वो कुछ करेगा, फिर कोई काम होगा। जिसने यीशु को पहन लिया, लूका की इंजील में लिखा है कि उसने मुझे मसा किया। किससे मसा किया? खुदावंद का रूह कुदस यीशु मसीह के अंदर उसके साथ है। जितनों ने यीशु मसीह को पहन लिया बपतिस्मा के वसीला से, खुदा का रूह उनके अंदर है। अब बाकी क्या है? सिर्फ उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है कि मैंने यीशु को तो ले लिया, अब उसके साथ जो खुदा का रूह है, अब मैं उसमें नहाऊंगा। रूह कुदस का बैप्टिज्म के मतलब क्या है? जल्दी से बोले शाबाश दलील से। अपने आप को यीशु के अंदर इमर्ज करना, इमर्ज, डुबोना। रूह कुदस का बपतिस्मा क्या? रूह कुदस का बपतिस्मा है कि अब अपने आप को रूह कुदस के अंदर डुबोना, इमर्ज करना। हालेलुया, हालेलुया। और रूह कुदस का काम और बपतिस्मा उसकी जिंदगी में जारी होगा जो समझ जाएगा, जो जान जाएगा कि बपतिस्मा क्या है। यूहन्ना लोगों को जिता रहे, बता रहे कि रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, मेरे बाद वो आने वाला है। और वो आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम तो अभी तक बपतिस्मे में हम दिमाग खपाते रहते हैं, हम बपतिस्मे के लिए लड़ते रहते हैं कि जी ये नहीं होता या वो नहीं होता। इसके बाद रूह कुदस का बपतिस्मा कैसे समझेंगे? बपतिस्मा तारुफ है रूह में डूब जाने का, बपतिस्मा तारुफ है मसीह में बदला लेने का। हालेलुया। अब बपतिस्मा है क्या रूह कुदस का? ये भी मैं आपको बता दूं। खुदा ने मुझे एक बात सिखाई है। अमाल पहला बाब, पहली आयत। मैं आपको ऐसी बात खुदा के कलाम में से बताऊंगा कि आप में से, मेरा ईमान है, सारे आज रूह कुदस का बपतिस्मा मिलेंगे। हालेलुया। अमाल पहला बाब, चौथी आयत। अमाल पहला बाब चौथी आयत। जी पढ़ दे कोई। मरून से मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो
जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। गौर से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, थोड़ा सा बेटा वॉल्यूम ऊपर करो। लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, किसने? यीशु ने। गौर से सुनिएगा कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। और बाप का वो वादा क्या है? फिर से सुन ले, 5वीं आयत। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद किससे? रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। अब बाप ने जो वादा किया, पुराने अहदनामा में खुदा बाप ने बहुत से वादे किए, लेकिन ये खास मार्किंग है कि बाप के उस वादे का, इसका मतलब है कि इस्राएल से भी वादा किया गया था रूह के बपतिस्मे का। इस्राएल से वादा किया गया था, और इस वादे को इब्राहिम भी जानता था, इस वादे को यशुआ भी जानता था, इस वादे को यशाया भी जानता था, क्योंकि उसने तो डायरेक्ट नबूवत की है। ये वादा किया गया था कि मैं अपने लोगों को रूह कुद्स से बपतिस्मा दूंगा। अब रूह कुद्स का बपतिस्मा है क्या? एमाल की किताब 2 बाब में आ जाए, फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। एमाल की किताब 2 बाब, पहली आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे। क्या लिखा है? जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। बड़े ध्यान से, बड़ी समझ से, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। बहुत सारे लोग जब रूह कुद्स के लिए, उसके बपतिस्मे के लिए खड़े होते हैं, सब मेरी तरफ देखे जरा, रूह कुद्स के बपतिस्मे के लिए खड़े होते हैं, तो ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं कि रूह कुद्स आएगा और वो मेरी जुबान को एकदम से बदलेगा और वो मुझे बुलवाएगा। ऐसा नहीं होता। बड़े ध्यान और बड़ी समझ से, ऐसा नहीं होता कि रूह कुद्स आपके साथ जबरदस्ती करे। हाँ, उसके आने के और उस वादे के, लेकिन रूह कुद्स का काम उसके अंदर जारी होगा। रूह ऊपर से नहीं आता। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, यीशु को पहन लिया, तो रूह कुद्स तो आपके अंदर है। अब वो आपके अंदर से कैसे जारी होता है, ये आपको समझना और देखना है। यहां पर लिखा क्या है, फिर देखिएगा, चौथी आयत, और वो सब रूह कुद्स से भर गए। कौन भर गए? कौन रूह कुद्स से भर गए? जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो सब के सब रूह से भर गए। आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने यीशु को कबूल किया हो और खुदा का रूह उसकी जिंदगी में या उसके लिए मौजूद ना हो। गौर से समझिएगा। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। एक वर्ड है यहां पर, जरा इंग्लिश ऊपर कीजिएगा, चौथे को।
appearance. اس ورڈ کو جب میں نے سرچ کیا، رات کو میں نے اس کے تعلق سے اسٹڈی کی، میں نے کھوج کی. اس کا مطلب ہے کلمہ، اس کا مطلب ہے بولنا. اور اس ورڈ کا جو مطلب ہے کلمہ یا بولنا، کلمے اور بولنے کا مطلب ہے کہ سیلف اسپیکنگ، یعنی کہ خود سے بولنا. اب سمجھیے گا میں کیا رہا ہوں. یہاں پر دیکھیے کہ ہوا کیا ہے، غور سے سمجھیے گا. چوتھی آیت، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے more than 24 hours. وہ 120 کی جماعت جو مرکز کے گھر میں تھی، وہ سب بپتسمہ لے کر اب دعا کر رہے تھے کہ باپ کا وہ وعدہ پورا ہو جس سے یہ سایہ نے کہا. اور وہ وعدہ کیسے پورا ہوا؟ ایک دم سے روح القدس کی تحریک آئی کہاں سے؟ کوئی جانتا ہے کہاں سے آیا روح القدس؟ لکھا ہے یہاں پر کہ روح القدس آسمان سے آیا، دائیں سے آیا یا بائیں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ لکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے. کیا لکھا ہے؟ آسمان سے. اب سمجھیے گا اس بات کو. وہ ٹائم ایسا تھا کہ روح القدس نے آسمان سے آنا تھا. جیسے یسوع مسیح نے زمین پر جنم لیا تو اس کے آنے سے بڑی ہلچل پیدا ہو گئی. اسی طرح وہ وقت ایسا تھا جب روح القدس نے زمین پر آنا تھا. آسمان سے آیا. اب روح القدس کہاں ہے؟ شاباش بولے ذرا دلیری کیا کریں. اب روح القدس کہاں ہے؟ کیا روح القدس آیا اور پھر آسمان پر چلا گیا؟ نہیں. اب روح القدس ایمانداروں کی کلیسیاؤں میں اور ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. اب اس بات کو ایسے سمجھ لے کہ جب روح القدس آیا اس نے انہیں تحریک دی، اس نے انہیں بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے. اب جس نے سمجھ لیا کہ خدا کا روح مجھے ورڈز دے رہا ہے، اس نے وہ ورڈز بولنا شروع کیے. روح القدس نے نہیں زبردستی کی. لوگ جان گئے. جب ہلچل ہوئی تو ہر ایک کو تحریک ملنا شروع ہو گئی. ہر ایک کو تحریک ملی. کسی کو زبانیں ملی جو نہیں جانتا تھا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ روح آ گیا ہے اور یہ روح کا نشان ہے. اب اس سے وہ زبانیں بولنا، لیکن بولنا خود سے ہے. اس تحریک کو لینا ہے. بہت سارے مجمعوں میں آج بھی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ ہمیں ایسے ہوگا کہ روح القدس ہم سے بلوائے گا، ہم بولیں گے تو ہی روح القدس کا بپتسمہ ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے. غور سے دیکھیے گا. اور زبانیں بولنے لگے. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ سب روح سے بھر گئے اور روح نے ان سے زبان، نہیں، سب روح سے معمور ہو گئے اور زبانوں میں بولنے لگے. وہ خود بولنے لگے کیونکہ جو شور ہوا تھا آسمان سے آنے کا، انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہاں پر خدا کا روح آ گیا ہے. اور جب خدا کا روح آیا اور ریڈی وہ پاکیزگی میں تھے، دعا کر رہے تھے، خدا سے ان کا لنک تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ روح القدس ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ایک اور آیت دیکھیے، ذرا حوالہ دیکھیے. افسیوں، یہ شاید آخری حوالہ ہے یقیناً. افسیوں 5واں باب. مجھے بھی روح القدس کا بپتسمہ ایسا ہی ہوا. گرا نہیں تھا، آگ
मुझे महसूस नहीं हुई। ये सब निशान है रूह कुदस के। रूह कुदस जब आता है, बहुत सारे लोग आंसुओं से रो रो के, क्योंकि रूह जब आता है तो लोग समझते हैं कि रूह मुझे क्या कह रहा है, जिससे मैं जान जाऊं कि खुदा का रूह मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। अब रूह कुदस का बपतिस्मा है क्या, इसके मायने क्या है? रूह कुदस का मतलब है कि अब आप खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस से मामूल हो चुके हैं। हालेलुया। रूह कुदस का मतलब क्या है? आप खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह से मामूल हो चुके हैं। जब मैं आपको ये बताता चलूं, रूह कुदस जब आपके अंदर से तहरीक जारी करेगा, आपको बैप्टाइज करेगा, तो आप बहुत सारे लोग बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करते हैं, आंसुओं के साथ। बहुत से लोग अपने अंदर आग को महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग दुआ करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जब रूह कुदस उन्हें बताता है, वो नबूवत बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा बड़े बड़े मजमों में, बड़ी इबादत में, कि कैसे जो प्रॉफिट होते हैं वो खड़े होते हैं और लोगों के बारे में बता देते हैं। क्या रूह कुदस उनसे बुलवा रहा होता है कि उनको बता रहा होता है? क्या कर रहा होता है? पाक रूह उन्हें बता रहा होता है। और प्रॉफिट कहते हैं कि खुदा का रूह मुझे बता रहा है कि आपका ये प्रॉब्लम है और आपकी जिंदगी में ये बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो रूह कुदस जब मुझे मेरे अंदर से उसने काम करना शुरू किया, पानी के बपतिस्मे के बाद जब मैं तैयार हो गया, रोजे में था, हमने रूह कुदस की रात की मीटिंग में जाना था। मैं कमरे में बैठा हुआ था, अकेला था, और मैं जाने से पहले आवाज आई कि गाड़ी आ गई है, जल्दी से सब आ जाए। मैं कमरे में बैठकर दुआ कर रहा था, तो मेरे अंदर, मेरे दिल में कुछ वर्ड्स आए, रीठा बारा शाखारा बाबाला, मेरे अंदर वर्ड्स आए। अब मेरे अंदर वर्ड्स आए, अब वो मुझे ताकत दे रहा है, तहरीक दे रहा है कि बोल। अब वर्ड्स आ गए, अब मेरे अंदर शक आ गया। मैंने कहा नहीं, शायद ये मेरी अपनी तकनीक है, ऐसा लग रहा है कि शायद। जब हम उस मीटिंग में गए तो वहां पर खादिमों ने कहा कि आप समझे, सारी रात हम वहां पर दुआ में, उन्होंने कहा कि आप समझे कि खुदा का रूह आपको क्या कहता है। तो फिर मैंने जाना और जो मेरे अंदर था, मैंने ईमान से बोलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। और इसका सबसे बड़ा निशान क्या है? अगर कोई बदरू गिरफ्ता शख्स आता है तो मैं उसके लिए उर्दू में भी दुआ करता हूँ और गैर जुबानों में भी दुआ करता हूँ, और बदरुएं निकलती है, बीमार भी शिफा पाते हैं। अगर ये रूह की तरफ से ना होता, ना बदरूहें निकलेंगी, फिर वो पता क्या कहेगी? आजा सामने, हम यीशु को भी जानते हैं और बालूस को भी जानते हैं, तू कौन है? अगर रूह की आवाज, रूह की तहरीक अंदर ना होती तो। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आज आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं, जब आप खड़े होंगे, पुराने लोग जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो आज लेने जा रहे हैं, हम सब यहाँ पर आज रूह के बपतिस्मे के लिए खड़े होंगे। और देखिएगा, रूह कुदस आपको बताएगा कि आपने क्या बोला। हो सकता है वो किसी बीमार का नाम बता दे, आप बोलना शुरू करें, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में ये जो इस वक्त की तहरीक जिसे आप छोटी समझते हैं, ये आने वाले वक्त में आपको बहुत आगे लेकर चलेगी, इसमें आपकी तरक्की होगी। इफ्सियों 5वां बाब 19वीं आयत, इफ्सियों 5वां बाब 19वीं आयत। रूह कुदस की एक और शक्ल भी आपको रूह की एक और आपको सुन्नत भी बताता हूं उसके बैप्टिज्म की। जी क्या लिखा है?
18वें आयत से पढ़ूंगा। लिखे और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी बाकी होती है, क्योंकि पाक रूह पाकीज़ा है। और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। हालेलुया। अब गीत आप जानते हैं, जैसे हम गाते हैं सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, जलाल जलाल मैं क्यों डरा, ये गीत है। ज़बूर क्या है? ज़बूरों का भी आपको पता है। ज़बूर 1 है, ज़बूर 24 है, ज़बूर 16 है, ज़बूर 18 है, रब ज़्यादा ज़ोर है, शुक्र यहोवा। आप ज़बूरों से भी वाकिफ़ हो। अब रूहानी गज़लें क्या है? रूहानी गज़लों से भी आप वाकिफ़ है। कभी कभी मैं गाता हूँ, मुझे अपने लहू का रंग दे, ये गज़ल है, आप हर शक्ल को जानते हैं। अब ये मज़ामीर क्या है? देखिए जरा इंग्लिश वर्जन में, ऊपर कीजिएगा। पौलुस रसूल कहते हैं आपस में, कोई पढ़ सकता है क्या लिखा है? 19वीं आयत के शुरू में क्या लिखा है इंग्लिश में? क्या लिखा है? शुरू में क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब ये स्पीकिंग क्या है? अब ये स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग रूह कुदस जो आपको बता रहे हैं, आप उससे कलीसिया में मजमे में बोल रहे हैं। स्पीकिंग क्या है? रूह कुदस की तहरीक है जिसे आप बोलते हैं, गीत गाते हुए, प्रोसेस करते हुए। इवन जब यहाँ पर आप वर्शिप भी कर रहे हैं, रूह कुदस आपको he saying something to you and you should speak। जब आप वर्शिप कर रहे हैं, रूह आपको कुछ बोलने के लिए कह रहा है। रूह कुदस आपको आगाही दे रहा है कि आप स्पीकिंग पर भी आ जाए। आप वर्शिप कर रहे हैं, ज़बूर गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन आप रूह से बोलना भी शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से ये हवाला देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि ये मज़ामीर है क्या। सारे काम खुदा के रूह से है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुदा के रूह को महसूस कर रहे हैं? मैं अभी से महसूस कर रहा हूँ खुदा के रूह को। हालेलुया। आए खड़े हो जाए, दुआ करते हैं। हालेलुया। रबा शाख्या लगा बाबा रेकंधरा शबाला रबा बाबा बाबा बाबा। आग के लिए, जुबानों के लिए, नबूतों के लिए तैयार हो जाए। डरिएगा नहीं। रूह कुदस उर्दू में भी बुलवाएगा, पंजाबी में भी बुलवाएगा आपसे कुछ ना कुछ। वो आपसे बुलवाने की कोशिश करेगा। अगर आप बोलेंगे, रूह कुदस आपको ताकत देगा। आपने समझना है कि रूह आपको क्या बता रहा है। जब आप बोलना शुरू हो जाएंगे, आप इसका मतलब है कि रूह से मामूर हो जाएंगे। आके बोलिएगा जरा। आखिरी बात, सॉरी मैं बताना भूल गया, बहुत खास बात। रूह के बपतिस्मे का मतलब है कि आप अब रूह की तहरीक से चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब है कि आप यीशु में नई जिंदगी में चलना। तो रूह कुदस का मतलब है कि आप रूह की तहरीक में चलना शुरू हो गए हैं। आइए दुआ करें। हालेलुया।